Okay. Now our chapter is cyber ethics. As we already discussed, this point is cyber ethics means whenever we use this cyber means internet. Okay. So at the time of using internet, we should follow some types of rules and regulations, that we should not harass anybody. We should not take the advantage of anybody's data. So there are some rules to be specified by some. Rules and regulation governed by the government, that we should follow. And here are some, it is in this topic we learn about ethics. What should we have, what should we follow? Okay. So first, in this first term, it's term as a e-commerce. E-commerce is nothing but when you are selling or buying something from the internet using the internet. ओके, आप कोई चीज परचेस या सेल कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, मीन्स यू आर प्लेसिंग द ऑर्डर ऑन द इंटरनेट, और यू आर गेटिंग द डिलीवरी एट योर होम, और यू आर सेलिंग समथिंग। यहाँ पे सेलिंग का मतलब इसलिए मैंने बोला कि सिर्फ हम ऑनलाइन परचेस ही नहीं करते, सेल भी करते हैं, लाइक OLX.com। ओके, इन एट विच यू कैन सेल, और इन Cars24 you can sell your car also. So here is not only option that we are selling, we are buying. Sorry, not only buying, we are selling also. Okay, so e-commerce is just a ट्रेडिशनल कॉमर्स, जो आप किसी शॉप पे जाके सेल और परचेज करते हो, उसकी जगह यूजिंग द इंटरनेट, इफ यू आर डूइंग सो, इट्स नोन एज ई कॉमर्स। एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स वी ऑलरेडी लर्न दैट इट्स अवेलेबल 24/7। Okay, no need to wait for shop to be open, you just place the order, but delivery may took some time. It is easier to start the e-commerce venture, setups are costly relative low। अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि यू कैन हैव योर ओन शॉप, एट दैट टाइम यू कैन go for e-commerce also. Okay, it offers better service to the customer because instances no hindrance। अब आप यहाँ पे बैठ के दिल्ली से कोई चीज सामान परचेस करना चाहते हो, या यू वांट टू परचेस समथिंग फ्रॉम आउट ऑफ द इंडिया, you just need to place order। Okay, with some extra delivery charge, that's a different point, but you can place order and you can get your things deliver at your home. Okay, so this is the advantages of e-commerce. Okay, customer drawn to e-commerce for the convenience of shopping from home. Now it's a very it's like an integral part of everybody's life. Okay, now most of the students and most of the parents, or I'm talking about person, the person are now more reliable on most reliable on getting things online। अब अभी अभी अब शॉपिंग की बारी आती है, तो कोरोना के सिचुएशन में आप किसी शॉप पे जाके परचेस करने से बेटर है आप सोचोगे कि चलो मिंत्रा से ही ऑर्डर पास कर देते हैं। ऐसा होता है और सही भी है, इट्स नॉट रॉन्ग, क्योंकि आप जहाँ जाओगे शॉप पे, ठीक है, किस किस लोगों ने उसको हाथ लगाया होगा, कितने लोगों ने उसको ट्राई किया होगा। तो बेटर टू अवॉइड दिस सिचुएशन, वी कैन make it happening while sitting at home। Okay, so this is the advantages of e-commerce। Drawbacks are there, see, in every situation you will get some advantages and disadvantages। Advantages हमने बहुत सारे देखे, disadvantages is like some people are still not getting still are uncomfortable while purchasing something online। Okay, okay, there are lots of people in like our father or mother, they are not टच करने के सिवा कोई चीजें पसंद नहीं करते खरीदना, तो इट्स अ ड्रॉबैक। और इसका सॉल्यूशन भी है। यस, इट इज अ ड्रॉबैक, बट आप कोई भी चीज परचेस करते हो तो आप हमेशा एक चीज ध्यान देते हो, उसके रिव्यूज जरूर पढ़ते हो। ओके, रिव्यूज के बेस पे आप डिसाइड करते हो कि चीज खरीदने जैसी है कि नहीं है। ठीक है, तो कुछ सॉल्यूशंस है, बट स्टिल ट्रेडिशनल ये कॉमर्स या ट्रेडिशनल परचेसिंग एंड सेलिंग इज मोर ट्रस्ट वर्दी in place of e-commerce। Okay, customer may feel insecure to buying something online। Okay, people used to keep a different account for this kind of activities। If not, they may find difficulty, or they may find that may my all data can be tampered, my data can be hacked by any other person which may misuse my data, anything। तो ये सारी चीजें भी रहती है when you are going online, this type of fraud or this type of
sensitive information, that you are giving your credit card details, okay, you are giving your bank card details, your Aadhaar details, that can be tempered. तो ये एक थ्रेड तो है ई कॉमर्स यूज करने पर। ओके, हमने प्राइवेसी के बारे में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि आजकल आप जितना भी ऑनलाइन टाइम यूज कर रहे हो, सपोज यू हैव हैबिट ऑफ यूजिंग द फेसबुक 2 आवर्स पर डे, आपकी हैबिट है कि आप फेसबुक को कंटिन्यूस 2 आवर्स तक देखते हो, तो वो आपकी सारी हैबिट ट्रैक हो रही है, एंड दे आर ट्रैकिंग विच टाइप ऑफ डेटा यू आर सीइंग। आप क्या देखते हो, 2 घंटे तो आप ऑनलाइन रह रहे हो, 2 घंटे आप क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट प्लेसिंग दी लाइक स्टेटस एंड एवरीथिंग, कि नहीं आप वो जो फीड्स होती है, होम फीड्स, वो देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, और 2 घंटे आपके निकल गए। और जो चीज आप एक 5-6 बार जो चीजें देखोगे ना, तो फिर पीछे सजेशन भी उसी के ही आएंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है, किसको पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि एवरीथिंग, योर surfing habits, what are you going to surf, how much time you are surfing, everything is getting noted somewhere। वो नोट डाउन हो रहा है कि बंदे को ये टाइम पे देखना है इसको, और ये टाइम पे ये प्रेफर करता है। अगर आप दोपहर को चीजें कुछ एक तरफ के चीजें देखना पसंद करते हो, तो वही चीजें दिखाएगा। फिर वही चीज आप रात को देखोगे तो शायद उसके सजेशन नहीं आएंगे, रात को कुछ और चीजें जो आप प्रेफर करते हो देखना, तो वो आपको उसी तरह से आपकी हैबिट के हिसाब से दे विल गिव यू दी डिटेल्स। ये आपको कन्वीनियंस लगता होगा कि नहीं, देखो मैंने 2-3 है ना, मेरी भी हैबिट पड़ चुकी थी। नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉड। ठीक है, ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। ठीक है, फ्रॉड का सिंपल मीनिंग ये है कि किसी यूजर को चीट करना, ऑनलाइन उसकी इंफॉर्मेशन एक्सेस करके उसको किसी ना किसी तरीके से हार्म पहुंचाना। फिजिकल भी हो सकता है, इकोनॉमिकली भी हो सकता है, और मेंटली भी हो सकता है, तीनों टाइप का। एक आप बेस्ट एग्जांपल मुझे तीनों का अलग अलग मैं आपको दे सकती। ओके, तो फ्रॉड कैन बी एनी 3 टाइप विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अब उसमें फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रॉड दिया हुआ है स्पाईवेयर। नाम से ही समझ में आ गया होगा कि स्पाई मतलब क्या। द्वारा स्पाई मतलब क्या? मैम मतलब किसी पे नजर रखना जासूसी है। करना, हाँ जासूसी करना है, नजर रखना। तो स्पाईवेयर एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, या यू कैन से एक टाइप ऑफ समथिंग दैट कैन बी इंस्टॉल्ड इन समवंस कंप्यूटर। हुँ? या उसके मेल में उसको इस तरह से भेजा जाता है कि वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन गेट करे और किसी और पर्सन को भेजे। देखो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। द टर्म स्पाईवेयर रिफर्स टू द सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली गैदर्स एंड ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट about users and their computers may and their web browsing habits. This information is mostly used by the advertising. Spyware may also harm users' computer by installing malicious software and changing the computer setting in matter that adversely affect its performance. स्पाईवेयर का मेन काम तो यही है कि वो क्या कर रहा है अपने कंप्यूटर में पूरा दिन, कंप्यूटर ऑन करने से ऑफ करने के बीच में वो क्या क्या चीजें करता है, वो सारी उसकी हैबिट्स को जज करना और किसी और को सेल करना, यही उसका काम है। बट कई बार उसको ये इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए उसको हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं हार्म तो करता है। ठीक है, जनरली ऐसी डिटेल्स सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कंपनी यूज करती है, बट वी नेवर नो। ठीक है, तो जैसे आई हैव phishing. It is the internet fraud that aims to trick the people into delivering the sensitive information. कुछ आपको मेल ऐसे आएंगे कि यार win this lottery, send this credit card number, send your bank details and get the 1 crore rupees। आते हैं ऐसे मेल। और उसका बेस्ट एग्जांपल आपको वो, अगर आपने देखा होगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें भिड़े को ऐसा मेल आया था, उसके बाद 2-3 एपिसोड उस पर चलाए थे। तो फिशिंग ऐसा लगता है कि आपको लगेगा कि आप सेंसिटिव जगह पे इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, पेज एकदम अच्छे से, हाँ भाई इसी कंपनी का ही है, कंपनी ट्रस्ट वर्दी है, पर आपके सिर्फ डिटेल ली जाती है, देन एवरीथिंग विल बी टेकन फ्रॉम यू। ठीक है, तो फिशिंग इज लाइक, और कई बार ऐसा भी होता है कि इट्स लाइक ये। नाउ नेक्स्ट वन इज ईमेल वेब बग्स। email web bugs are object secretly embedded in the emails to gather the information such as recipient IP address, exact time at which the email was read, and webbugs are used by people engaged in phishing
and email marketing to verify that the particular email address is valid so that it can be targeted for the further exploration. तो आपको पहले एक सैम्पल मेल भेजा जाएगा जिसमें कुछ इमेज होगी या कुछ भी ऐसी चीज होगी जिसपे आप क्लिक करने के बाद उसको पता चल जाएगा कि हाँ आपने वो मेल देखा, आपने उसको रीड किया, अच्छे से सब कुछ किया, इतनी देर तक आप उस मेल की विंडो पे एक्टिव थे। ओके, एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन किसी और को दे दी गई। फिर इन्फॉर्मेशन जब दे दी गई तो उसको समझ में आया कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन वैलिड है और ये बंदा सही है, अब इसको हम टारगेट कर सकते हैं। तो यू बाय दिस वे वो एक छोट बग डाल दिया आपकी ईमेल में, एक वायरस टाइप का डाल दिया या एक इमेज डाल दी जिसमें आप क्लिक करने पर सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है, थर्ड पार्टी के थ्रू। तो दिस इज वन टाइप ऑफ फ्रॉड। ओके, तो ये थी कुछ फ्रॉड्स की बातें। ओके, कि गलत तो है तो करने का ठीक। तो देर आर लॉट्स ऑफ फ्रॉड्स अवेलेबल, जैसे हमने अभी तक इतनी सारी बात की, ये तो सिर्फ कुछ ही है, अब इसमें डिटेल में नहीं बताया गया है। देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स आर देयर, और तो नए नए पैंतरे निकाल लिए हैं, तो इसमें कुछ ही दिए हुए, यू कैन गेट मोर फ्रॉम द ऑनलाइन। अब वेट, सिक्योरिटी ऑफ मैम क्या इंफॉर्मेशन। हुआ, आपने मेरे को क्यों बोला ऐसे कि जंगल में बैठ के पढ़ रहा है? पहले सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इंश्योर्स द प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड। सिक्योरिटी का सिंपल मतलब ये है कि कोई पर्सन आपका जो भी सिस्टम है या जो भी डेटा है उसका अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए, इट्स कॉल्ड द सिक्योरिटी। अब इसमें दो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझाई गई है, व्हाट यू मीन बाय हैकर एंड व्हाट यू मीन बाय क्रैकर। हैकर वो होता है जो जानबूझ के सिस्टम को हैक करता है, जानबूझ के उस सिस्टम में एक्सेस करने की ट्राई करता है जैसे वो सिस्टम को बेटर बना सके। गवर्नमेंट एजेंसीज या सिक्योरिटी एजेंसीज, दे आर एक्चुअली हायरिंग द हैकर्स टू हैक देयर ओन सिस्टम, कि कहाँ कहाँ लूप होल्स है, कहाँ से कोई बंदा घुस सकता है, ऐसा जांचो और उसको ठीक करो। दैट इज हैकर्स। क्रैकर्स वो होते हैं जो यूज करते हैं सिस्टम को, उसको उसका अनऑथराइज एक्सेस करके उसको हार्म करने की कोशिश करते हैं अपने लिए। हैकर्स आर गिविंग व्हाट वी कैन से, हैकर ऐसे लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि तुम्हारे सिस्टम में यहाँ प्रॉब्लम है तुम ठीक करो। एक क्रैकर्स होते हैं जो यूज करने के बाद सब लूट के चले जाते हैं, तो क्रैकर्स आर मोर डेंजरस देन हैकर्स। ठीक है, हम अब सिनेरियो ऐसा हो गया कि हम सबके लिए हैकर ही वर्ड यूज करते हैं, जनरली वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड क्रैकर्स, बट हैकर्स अलग होते हैं। क्रैकर्स वो लोग होते हैं जो कर रहे हैं पर अपने फायदे के लिए, और वही सेम काम हैकर कर रहा है पर किसके लिए कर रहा है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक जनरल नॉलेज की मैं बात बताती हूँ। देयर इज अ ग्रुप ऑफ एनोनिमियस, एनोनिमियस करके ग्रुप है, ये हैकिंग हैकर्स का ग्रुप है, हैकर्स का ग्रुप है, नॉट क्रैकर्स का ग्रुप। ये हैकर्स का ग्रुप है जो जो भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है ना उनकी सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करती है, जिसके थ्रू वो अपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, उन सिस्टम्स को हैक करती है। और हैक करने के बाद अगर सपोज पाकिस्तान के सिस्टम को हैक किया, ठीक है, अब उनके बीच में ऐसा कोई बात हो रही होगी कि इंडिया में ये अटैक करना है, तो वो चीजें वो इंडिया वालों को बताती भी हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है या कुछ मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो एनोनिमस ग्रुप्स आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे, यू कैन गेट इट। देयर आर द पर्सन, उन एनोनिमस नाम इसलिए रखा गया है कि आज तक उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा, सिर्फ नाम है एनोनिमस। ठीक है, बट वी कैन नॉट सी उन, कभी भी किसी ने देखा ही नहीं है, और इवन आप ऑनलाइन भी उसको सर्च करोगे ना तो वो मास्क के फॉर्म में ही दिखेंगे आपको। ओके, तो सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन में आपकी इंफॉर्मेशन का कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके, और उसके अगर दो लोग होते हैं हैकर या क्रैकर, जिसका मैंने आपको डीप में अंडरस्टैंडिंग बताया, तो क्या हो, क्रैकर इज वन हु गेन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर एंड फॉर पर्पस ऑफ स्टीलिंग एंड करप्टिंग द डेटा। ओके, तो ऐसा क्या करना चाहिए तो हमारी सिक्योरिटी बेटर हो। तो पहला तो सिंपल है कि आप कहीं भी चीज अगर आपकी सेंसिटिव है तो मेक इट पासवर्ड प्रोटेक्टेड। ठीक है, अब सिंपल सी बात है यार, एक आप अभी शायद आप लोग फेस नहीं करते होंगे, पर हम जैसे जिनका एक सिक्योरिटी अकाउंट है, जिनके 2-3 बैंक अकाउंट्स हैं, ठीक है, ईमेल अकाउंट है, तो और हर बार अब क्या हो गया 3-3 महीने में पासवर्ड चेंज करना है।
ठीक है, सिक्योरिटी अकाउंट देख लो तो 3-3 महीने में वो पासवर्ड चेंज कराते हैं, तो कितने पासवर्ड याद रखोगे यार, नॉट पॉसिबल। तो हम कहीं ना कहीं लिख के रखते हैं उसको, बट वो लिख के रखने के बाद भी उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखते हैं। ठीक है, तो there are some information that you should not to reveal to anybody, it should be password protected। चाहे वो आपका ईमेल एड्रेस क्यों ना, वो तो चलो वो तो बाय फोर्स वो लोग करवाते ही है, नहीं तो पहले के पासवर्ड अगर आप देख लो ना। दूसरी चीज क्या बोलती है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लाइसेंस्ड वर्जन डालो। फालतू एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ हार्म कर रहे होते हैं। क्या है, देखो एंटीवायरस सिस्टम सीधा का सीधा बूट प्रोसेस के साथ लिंक हो जाता है, अगर वो सही नहीं है तो ऑब्वियसली इट इज हार्म योर कंप्यूटर और वो आपके डेटा स्टील ही कर रहा होगा। पर अगर प्रॉपर लाइसेंस वर्जन आपने डाला है तो इट रियली हेल्पफुल टू योर डिवाइस। ठीक है, थर्ड वन इज फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, इसका डीप में नहीं दिया हुआ है। फायरवॉल क्या होता है कि आप इट्स द पार्ट ऑफ योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑल्सो ओनली। उसमें एक फायरवॉल सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू कोई भी डेटा आपके सिस्टम में आने से पहले फायरवॉल के पास जाता है। फायरवॉल उसको चेक करता है कि एवरीथिंग इज ओके, कोई भी डेटा ऐसा तो नहीं है जो इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, तो अगर नहीं जाना चाहिए तो वही वहीं पे स्टॉप कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड फायरवॉल। तो दीज आर सम वी कैन से सिक्योरिटी, अगर हमें इंश्योर करनी है कि हमारा डेटा प्रोटेक्टेड रहे, तो दीज आर सम पॉइंट्स। ओके, ये जो सिक्योरिटी बताई गई